Hello, my dear student. Hope you are fine. Welcome you in this lecture number 39 for the topic human reproduction. Now we have started learning one of the very important article, that is female reproductive cycle or menstrual cycle. And in the last video, I have explained you about all that menstrual cycle ideas, what is exactly that, and then the different phases of that menstrual cycle. We have mentioned that 4 different phases of menstrual cycle are there. Which are that 4 different phases? One is the menstrual phase, other is the follicular phase, third is the ovulatory phase, and fourth is the luteal phase. Okay, and that occurs in the periodicity of 28 days regularly. Once the puberty of the female is there started, then right up to the age of 45 to 50 years, that reproductive phase, it is called, of the female, this goes on repeating after every 28 days, and that is called as menstrual cycle. It may be temporarily arrested only and only during pregnancy. Whatever the time that female will remain pregnant there in her reproductive phase, during that pregnancy period till the that birth of that young baby, or that parturition process, delivery, and then even after that, say about near about 2 months, that process will not occur. MC. Okay. तो चलो शुरू करते हैं. इसके 4 फेजेस मैंने साइकिल निकाल के आपको दिखाया दिए. And now we'll go one by one for each phase there. But for that, do watch earlier video. Menstrual phase. The first is the menstrual phase. Okay. Now remember, it is also called as bleeding phase. उसको bleeding phase भी कहा जाता है. Okay, because during this period the bleeding occurs, or also called as destructive phase. Okay, ये कितने दिन चलता है? It is in the beginning. अब साइकिल एक केंद्र भी शुरू करना पड़ेगा. It starts or it lasts for about 3 to 5 days. Variable. कभी कभी किसी गर्ल्स में या किसी फीमेल में वो और भी एक्सटेंड हो सकता है 1-2 दिन. ओके, 3 to 5 days it lasts. The day on which the bleeding starts from the vagina, that is called as the first day of menstrual cycle. First day वो होता है first day of menstrual cycle. कौन सा होता है? When bleeding is starting. ओके, और उसके आगे हमें ये पूरे दिन काउंट करने से अप टू 28 डेज. जो मैंने बताया था 3 to 5 डेज तक चलेगा. 1 to 5 डेज दिया था हमने वहां पे. व्हाट? मेंस्ट्रुअल फेज. फिर दूसरा फॉलिकुलर फेज 5th डे से 12th या 13th डे तक. देन ओव्यूलेटरी फेज, मोस्टली 14th डे, समटाइम्स 13th डे. ओके, एंड देन that luteal phase. Okay, जो 15th डे से 28th डे तक. तो ये डेज जो काउंट करने हैं वो मंथली कैलेंडर जो है वहां से नहीं. ओके, हर महीने का जो कैलेंडर डेट आता है, नंबर 1 1 जनवरी, 1 फरवरी, वो नहीं है. ये कौन सा डे मैं बता रहा हूं आपको? द डे ऑन विच द ब्लीडिंग हैज बीन स्टार्टेड from the vagina of that female will be known as the first day of that cycle. और उसके आगे तो इस दरमियान क्या होता है? देखो, particularly during this period the bleeding used to happen. Bleeding occurs, okay, through vaginal opening. vagina और vaginal orifice से हो जाता है. okay? और वो फीमेल बिल्कुल महसूस करती है. दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो. उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो. दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो.
or generally near about 35 to 45 ml of the blood. 35 ml to 45 ml of the blood is lost during that menstrual flow. Okay, ये ज्यादा डरने की बात नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें डराने चीज ऐसी कुछ भी नहीं है. इट इज नॉट ए वुंड एक्सेट्रा. तो ये क्या है एग्जैक्टली वो हम जानना चाहेंगे. पर्टिकुलरली व्हाट हैपेंस दैट इट इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग. ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल या एंडोमेट्रियम, जिसको हम कहते हैं यूटेरस का इनर लेयर है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस. ओके, फिर उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसे तैयार होता है, एंड ऑल्सो द ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट देयर, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट देयर. ओके, तो उसमें क्या होता है, दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो विल बी कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, it will be consisting of blood, it will be consisting of that is a liquid form, no doubt, dead cells or the cell debris. Cell debris होगा या dead cells होगी. Then unfertilized ovum, उसमें और एक चीज क्या होगी, unfertilized ovum जो dead होने के लायक है. Okay, so this mass will be lost outside along with the menstrual flow in the liquid form. And very important thing is that it occurs only when egg or ovum is not fertilized. पिछली साइकिल जो हो गई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम जो एग रिलीज हुआ था वो अगर फर्टिलाइज होता है तो ये नहीं होता है, मैंने दिखाया था उस साइकिल में. फिर जेस्टेशन फेज की तरफ जाएंगे, पर वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है. तो ये चीज ध्यान में रखो. और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी है, इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और ओवम ऑकर्स, फिर क्या हो जाता है, then no menstrual flow, no menstrual cycle. Okay, and that may be indication of, it may be कह रहा हूं मैं, indication of pregnancy. ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो सकता है, यानी गुड न्यूज हो सकती है फॉर दैट मैरिड वुमन, isn't it? If that is fertilized, तो प्रेगनेंसी बन जाती है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाता है. ओके, तो ये चीज अच्छी तरह से ध्यान में रखो. फिर बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना पड़ेगा. अगर प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी इंटरप्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड. तो ये पूरे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं अच्छी तरह से. ब्लीडिंग फेज, डिस्ट्रक्टिव फेज. अब ये देखो, इसका एक कंसेप्ट ध्यान में ले लो, ये एक्चुअली होता क्या है. अब इसके पहले, अब ये तो चालू हो गया मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसके पहले के साइकिल में हर 28 डेज में, हर एक साइकिल में एक एग बाहर आता है ओवरी से. देखो नेचर का डिजाइनिंग प्लानिंग कैसा है. वो एक एग जो आता है ओवरी से, दैट विल बी कैप्चर्ड बाय द ओविडक्ट, यू नो, एंड दैट विल बी, और एक्चुअली जो एग दिया है वो क्या ऐसा एक फैशन बोल के थोड़ी दिया है. इट इज गिवन फॉर द फंक्शन. देयर क्या फंक्शन है उसका फंक्शन, ये ओवरी से आया है. ओके, दिस इज द एग. नाउ दिस एग विल बी कैप्चर्ड बाय द फिम्ब्री ऑफ द ओविडक्ट, विल बी टेकन इनटू दिस एम्प्यूला, यहां पे आ जाएगा. एंड नाउ बाय द टाइम थ्रू द वजाइना, इफ द स्पर्म्स विल कम, एखादा स्पर्म भी अगर आ गया यहां तक, then they may unite and fertilization may occur. It is meant for that. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो चेंजेस बहुत ही फास्ट हो जाएंगे. फिर ये जाइगोट जो है वो जाइगोट बन जाएगा ओवम का आफ्टर फर्टिलाइजेशन. दैट शुड बी ब्रॉट इनटू द यूटेरस. यूटेरस का मेन फंक्शन क्या है, टू गिव द शेल्टर एंड नरिशमेंट एंड
जस्ट द ग्रोथ ऑफ दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, बेबी बनेगी। तो उसके लिए यूटेरस को प्रिपेयर होके रहना चाहिए। तो जैसे ही ओव्यूलेशन होके एग बाहर आ गया, वो कॉर्पस ल्यूटियम हम जो देखेंगे, देखा है हमने ओवरी के, आफ्टर द ओव्यूलेशन द रेमनेंट ऑफ द दैट ग्राफियन फॉलिकल हैज फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसका प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन ब्लड से आ जाता है यूटेरस के पास, उसको खुशखबरी बता देता है, चलो भाई अभी आपकी सेवा काम में आने वाली है। अब जो है वो एग रिलीज हो गया है एंड नाउ इट विल गेट फर्टिलाइज। वो फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो आ जाएगा। एम्ब्रियो आने के बाद आपका काम शुरू होने वाला है। सो गेट प्रिपेयर्ड टू वेलकम दैट एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो को वेलकम करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो बिल्कुल एक खुशी की लहर दौड़ जाती है इस यूटेरस के अंदर, and it starts to prepare endometrium in the form of a thick cushion like structure, rich network of blood capillaries। किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। अब एग आने वाला है, एम्ब्रियो आने वाला है, उसको हमें संभालना है कम से कम 9 महीने तक। तो तब तक उसके इसमें कुछ भी दैट नो लैक्यूना शुड बी देयर, वी शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। कुशन के जैसा एक लेयर तैयार हो जाता है, नियर अबाउट 3 to 5 मिलीमीटर इन थिकनेस। ऐसा वो एंडोमेट्रियम बन जाता है और वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन में है कि अभी फर्टिलाइजेशन होने वाला है और वो आने वाला है। पर दुर्भाग्य से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी प्रिपरेशन वेस्ट चली गई। When fertilization does not take place, the corpus luteum of the ovary degenerates। फिर प्रोजेस्टेरॉन आना बंद हो जाता है। हर रोज जो आके उसको वो एक इंटीमेशन देता था यूटेरस को, चलो एम्ब्रियो आने वाला है, चलो एम्ब्रियो, तो वो अभी नहीं आ रहा है। एंड नाउ यूटेरस कम्स टू नो समथिंग इज बैड हैपन। और जैसे यूटेरस को बाद में पता चल जाता है कि एम्ब्रियो नहीं आ रहा है, देन यूटेरस स्टार्ट्स डिस्ट्रक्टिंग इट्स एंडोमेट्रियम। बहुत ही सैड हो जाता है और उस सैडनेस में क्या कर देता है, अपना एंडोमेट्रियम पूरा तोड़ फोड़ करके फेंक देता है। गुस्सा आ जाता है उसका, isn't it? And then it is going to shed entire endometrium। बेसिक लेयर उसका रहता है 1 मिलीमीटर का वैसा ही, पर बाकी का ऊपर का जो बनाया था ज्यादा, and blood capillary network all will be ruptured and that will started in the form of the menstrual flow, and that is the beginning of the next MC। तो इसलिए MC आ गई है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो एक ग्रिफ था, ये जो दुख था, वो यूटेरस नहीं सह पाया, एंड दैट्स व्हाई यूटेरस हैज started shedding its wall, internal wall called as endometrium, and that has come in the form of menstrual flow। देखो ये नैसर्गिक है, नेचुरल है, टोटल। ओके, प्रिपरेशन किया था, हम भी देखते हैं ना, प्रिपरेशन बहुत करके रखा है किसी गेस्ट को आने के लिए और वो नहीं आया तो क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो दैट इज पर्टिकुलरली द थिंग विच इज हैपनिंग हियर। इसलिए इस मेंस्ट्रुअल फेज को ऐसा भी कहा जाता है, इट इज said that it is the weeping or crying of uterus for lack of baby, for lack of baby। अब बेबी नहीं आने वाली है वहां पे ग्रो करने के लिए, और for lost ovum। ओके, ओवम का जो डेथ हो गया, इसके लिए इसका ये वीपिंग है, रुदन है। और it is also called as the funeral of dead egg, funeral of dead egg। okay, ये ध्यान में रखो। so I hope you have got this is very interesting and very important conceptual part उसका, जो अभी मैंने लास्ट में बता दिया क्यों होता है, why the bleeding occurs there, तो वो पार्ट जानना जरूरी है। और पॉइंट्स अगर लिखने हैं, राइट ए नोट ऑन मेंस्ट्रुअल फेज देयर, तो ये पूरे पॉइंट्स हमें लिखने हैं, या इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल, एंड विल मीट अगेन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल काटेसर बायोलॉजी एंड काटेसर बायोलॉजी शॉर्ट्स। थैंक्स अ लॉट।